What a great evening it is! A galaxy of dignitaries and honorable invitees are here. What precious treasure is wrapped in today's grand evening? Look at the screen. I think it's revealed here. Oh, it's go and do likewise. For an effective articulation of the theme, go and do likewise, let's have a glimpse of John and Sarah's family. John and Sarah got a value-based project from the teacher on the topic Go and Do Likewise. Both are busy searching in the internet for the content. आलात? हो. सुनबाई, जरा ग्लासभर पाणी आण बघू. आपले यंग सायंटिस्ट खूप बिझी दिसत आहेत. What happened, John? Why do you look so sad and gloomy? Grandpa, my teacher has given me a project to find out about great personalities who have sacrificed their life in doing good for others and following the word of God. Go and do likewise. So, Grandpa, I am a bit confused about it. Oh, is it so? That's why you are so sad. Come on, I will help you in finding that. John, do you know who is the father of our nation? Ha! It is Mahatma Gandhi. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, an Indian lawyer, politician, social activist and writer, who became the leader of the nationalist movement against the British rule of India. He came to be considered the father of our country and was lovingly called as Bapu. Gandhi is internationally esteemed for his doctrine of non-violent protest, that is Satyagraha, to achieve political and social progress. He was born on 2nd October 1869 to Karamchand Gandhi and Putlibai Gandhi. As a child, Gandhi seldom liked to stay at home. He would go home for his meals and then run away again to play outside. If one of his brothers teased him or playfully pulled his ears, he would run home to complain to his mother. Mama, Bhaiya is pulling my ears. Mohan, then what did you do? Did you hit him back? Ma, why should I hit my brother? Why should I hit anyone? This would be Gandhi's prompt reply. Papa, let's go to see a drama. Which drama, beta? Raja Harishchandra. See, Mohan, I am busy with my work. Shall we go on some other day? Papa, can I go with my friends? Okay, but take care of yourself. नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार दांव पे लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन बिताना चाहिए। की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के. In the eyes of millions of his fellow Indians, Gandhi was the Mahatma, a great soul. Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915 and became a part of freedom struggle. After seeing the misery and poverty of the people, he took up the vow of service to the nation. He followed the path of satyagraha, truth and non-violence to gain justice for common people. दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम. Rise as a spring of hope, firmly resolved to lead a violent world into the path of ahimsa, to attain peace and tranquility, as the messenger of truth and non-violence. धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम. Gandhiji gave a powerful message during the launch of Quit India movement. Every one of you should, from this moment onward, consider yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in the attempt. Be ready to sacrifice with the feeling of do or die. अरे अरे, तुमने सुना? हमारे गांधी गिरफ्तार हो गए हैं. ये तो बहुत बुरा हुआ. हाँ, लेकिन हमारे पास गांधी जी का नारा तो है. हाँ हाँ भाइयों, तो चलो हम मिलकर गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं. अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम. इस कठिन पंथ पर चलना था आसान नहीं, हम चले तुम्हारे साथ, कभी अभिमान नहीं था बापू, तुमने हमें
गोद में उठा लिया। यह आने वाला दिन सबको बतलाएगा, फिर ऐसा नेता देश कभी क्या पाएगा? है कोई जो फिर ऐसी राह बनाएगा? है कोई जो फिर ऐसी राह बनाएगा? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की ओर चदरिया जगा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओर चदरिया, विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमिर चादर ढेके शुद्धिर शूरे गानाए। सिंधमिळ्वानिल पुदिय पुर्विडियल आयरमालवन तोलिडुदे। विश्व प्रेमाची ओढून चादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाड़े जे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम भारतम, जय तु भारतम। हो जाएंगे नई राहें, लिख देंगे आशाएं। I learnt the values of truth, non-violence and sacrifice from the life of Mahatma Gandhi, and I will try to follow these values. After independence, sovereign Indians thought that country should run according to its own constitution. So, formation of our constitution became inevitable. For that, Dr. Babasaheb Ambedkar was invited to shoulder the responsibility of drafting the Constitution of India. सब चले साथ, देश रहे जिंदाबाद। बाबा साहब, बाबा Bharat Ratna Babasaheb Bhimrao Ambedkar had a huge impact on nation building, on the freedom struggle and all the values that he stood for. Educate, organize and develop the society was his message to the people. He was truly an icon for many Indians.
संघर्ष का एक ही ध्यास बाबा साहब, देश का हो पूरा विकास, देश का हो पूरा विकास, सब चले साथ देश रहे जिंदाबाद। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तेरे संघर्ष का एक ही ध्यास बाबा साहब, देश का हो पूरा विकास, देश का हो पूरा विकास। Baba Saheb emphasized on secular education, civil liberties for individuals, and religious freedom. He was a pioneer behind the building of Indian economy. Most importantly, he was a social reformer, a political leader, an economist, a jurist, and a lawyer. सबके लिए पढ़े तुम, समता के लिए लड़े तुम, हम सबके लिए पढ़े तुम, समता के लिए लड़े तुम, हर मुश्किल का कर सामना, उन्नत की सीढ़ी चढ़े तुम, हर मुश्किल का कर सामना, उन्नत की सीढ़ी चढ़े तुम। इतिहास में भी ना हो ऐसी कोई मिसाल, इतिहास में भी ना हो ऐसी कोई मिसाल। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तेरे संघर्ष का एक ही ध्यास बाबा साहब, देश का हो पूरा विकास, देश का हो पूरा विकास। Baba Saheb worked for gender equality and women empowerment. He put efforts to eradicate social evil like untouchability. He worked for farmers and poor. He was the chairman of the drafting committee of the Constitution. He was the true son of India and is called the father of Indian Constitution. मजदूरों किसानों के बन गए रहनुमा तुम, महिलाओं और शोषितों के बन गए मसीहा तुम। सांझ सवेरे मेहनत से लिखा ये संविधान, सांझ सवेरे मेहनत से लिखा ये संविधान। भारत माँ के सच्चे सुपुत्र तुम महान, भारत माँ के सच्चे सुपुत्र तुम महान। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तेरे संघर्ष का एक ही ध्यास बाबा साहब, देश का हो पूरा विकास, देश का हो पूरा विकास, सब चले साथ देश किती छान माहिती मिळाली आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची. खरोखरच महाराष्ट्राचे सुपुत्र, महामानव, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य खूप महान आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून आयुष्यात कसं यशस्वी व्हावं हे नवीन पिढीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडून शिकले पाहिजे. आपला महाराष्ट्र म्हणजे नररत्नांची खाण आहे. महाराष्ट्र
माझा महाराष्ट्र, आपला महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी गडावर झाला. गडावरील शिवाई देवीच्या नावावरून माता जिजाबाई यांनी त्यांचे नाव शिवाजी ठेवले. ऐकूया तर शिवप्रताप पोवाडा. शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती. महाराजांची कीर्ती बेफाम, भाल्या भाल्यांना फुटला घाम, याला कोण घालील यस्सेने, दरबारी पुस्ती बेगम. बडी बेगम म्हणजे अली आदिल शहाची आई बर का. नजर येतात तिच्या अंगार, दरबार झाला गपगार, कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार. इतक्यात अचानक एक सरदार उठला, बोलला, मैं लाऊंगा शिवाजी को. आणि त्यानं विडा उचलला. नवतेच अफजल खाने, या नवतेच अफजल खाने, जिता जागता जणू सहिताने, कान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून. मरहबा सुभानअल्लाह. कौतिक झालं दरबारात, खान निघाला मोठ्या गुरमीत. त्याच गोड तळ पायतळ, फौजा फाटा नाही बक्कळ, अंगीत हातीच बळ, पाहणारा कप चळचळ. वाटेत भेटेल त्याला चिरडी, घेतीत खानाची सेना निघाली. तिकडं मोगल, पलीकडं इंग्रज, जो तो हेच बोलू लागला. राजाची सेना मुठभर, खानाला कसा ठोपणार, काय लढवावा हुन्नर, चिंतेत पंत सरदार. पण आई जिजाऊ काय म्हणाल्या. शिवबा केवळ आमचा पुत्र नाही, तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी बेहत्तर, परंतु घाटपणे पळून जाऊन या मराठी मुलखाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये. अशा वागीचा त्यो छावा, अशा वागिनीचा त्यो छावा, गनिमान कसा ठेचावा, डोक्यात नेहमी कावा, भेटीचा धाडला सांगावा. प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण. शिवाजी राजाच्या करामतीची, आणि त्याचे नाही जाणीव शक्तीची, आणि करील काही कल्पना युक्तीची. खानाच्या भेटीसाठी महाराजांना एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारी नक्षीदार शामियान्याला, आणि अशा या शामियान्यात खान ठेवलं तटून येत. सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, बाबाच्या संगती महाला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी, आओ, हमारे गले लग जाओ, आओ. खान हाक मारी तो हसली, पण आपला राजा पण काय कच्चा पुढचा चेला नव्हता. राजा थोर पात त्याची न्यादी, खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खानानं अभिमान मान्याला, कट्यारीचा वाद त्यानं केला. खर आवाज झाला, चिलखत होतंय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला. खान गडबडला. इतक्यात महाराजानं
वाटे गेली पावने केला कृष्णेचा घाट पावने केला कृष्णेचा घाट पावने केला कृष्णेचा घाट लावली गुलामीची हो वाट लावली गुलामीची हो वाट लावली गुलामीची हो वाट मराठशाहीचा मांडला थाट जी जी 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 महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत 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 श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी. म्हणून तर म्हटले आहे शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप. भूमंडळी सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, भगवा टिळा चंदनाचा शिवनेरीवर प्रकटला. हातात घेऊन तलवार शत्रूवर गरजला, बोला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. आजी, आपल्या इतिहासात अशी कोणी महिला आहे का जिने महिला उद्धारासाठी आणि शिक्षणासाठी काही केले? हो आहे ना. प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले. स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया. आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है. पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था. पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था. ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी. और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख. कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल. हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल. ओए, कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला. औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है. खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो. पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो. तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे. शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे. शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे. शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती. शिक्षित होना हम सबका अधिकार है. पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे. यादों पक्षों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे. उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे. कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम. समाज की दुर्गति है ये. स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है. धार्मिक कार्य में रुकावट हो तुम. शास्त्रों का विरोध है. मारो, मारो इन्हें, पत्थर से मारो. कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर वार हम सहेंगे.
पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। Wow, that was very inspiring. Even I will try to do good for the welfare of the women. Yeah, that's inspiring. She was a pioneer in women's education and fought against injustice and inequality. Let's say a family prayer. Daddy, why do we pray in the evening? You ought to reach home before evening and take part in the evening prayers. Dad, who said this? It's Sen Chavra. Who is Sen Chavra? He is a champion of education, opened the doors of education to the people from all the sections of society. He stood against violence and tried to erase hatred and enmity, worked for the less fortunate brethren of the society. बचपन से ही वह ईश्वर के प्रति समर्पित थे और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए एक पुरोहित बनने का निर्णय लिया। लेकिन प्रशिक्षण के समय ही एक महामारी में उन्होंने अपने माता पिता और इकलौते भाई को खो दिया। उनके रिश्तेदार उन्हें जबरदस्ती घर वापस ले आए। बेटा, अब तुम घर गृहस्थी संभालो। तुम्हारे बिना यह घर, धन संपत्ति सब अन्याधीन हो जाएगा। नहीं चाचा, मुझे मालूम है कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं कहती हूँ अब शादी कर लो। अब तुम्हारा भैया भी नहीं रहा। अब यह वंश बढ़ाना तुम्हारा धर्म है। नहीं चाची, मेरा धर्म ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता और न ही कर सकता हूं। सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में, सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। तेरे चरणों का पुजारी बनूं, एक बार तुझको मैं पा जाऊं। हे प्रभु सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में, सौंपता हूँ अपना जीवन तेरे हाथों में। पुरोहित बनने के बाद उन्होंने जाना कि समर्पित लोगों के अभाव से बहुत सारे भले कार्य जो हो सकते हैं
अभी नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक संन्यास समाज की स्थापना करने का निर्णय लिया। संन्यास समाज के पहले आश्रम के लिए वह जगह ढूंढने चले। वो चाहता था कि आश्रम ऐसी जगह हो जो ईश्वर की उपासना के लिए एकांत स्थान हो और जनता के बीच काम करने के लिए जल्दी पहुंच सकें। मैं आप लोगों से कहता हूं, जिस दिन आपने किसी के लिए भी कोई भला कार्य न किया हो, वो दिन आपने व्यर्थ गंवाया है। फादर, आइए आइए आइए। फादर, हमने आश्रम के लिए जिस जगह को चुना था ना, उधर शायद हम आश्रम नहीं बना पाएंगे। क्या हुआ? कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई है फादर कि उस पहाड़ी पर चर्च और आश्रम का होना वे लोग पसंद नहीं करते। ओहो, ऐसा? हमने 15-16 जगह देखने के बाद उसे पसंद किया था। अब हम क्या करें? अरे फादर एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उन्हें कौन रोकता है। फादर, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। वे कहते हैं कि वे सब मिलकर उन्हें दबा देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हर धर्म के लोग ईश्वर के उपासक हैं। किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमें दूसरी जगह मिल जाएगी। प्रेम की राह से हटकर हम कुछ नहीं करेंगे। प्यार ही जीवन का आधार हो, प्यार बिना सब व्यर्थ ही जान रे। और प्यार ही जीवन का आधार हो, और प्यार बिना प्यार बिना प्यार बिना प्यार बिना। कहां जा रहे हो? मालिक के यहाँ काम पे। और इसे कहां ले जा रहे हो? यह तो मालिक का ढोर चलाएगा। बड़ा होशियार बच्चा है, धीरे धीरे सब काम सीखेगा। इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? कौन सा स्कूल इसका नाम लिखेगा? हम तो ठहरे नीच जाति के। ऐसा मत सोचो, इसे हमारे स्कूल ले आओ। इसका बच्चा स्कूल आएगा तो बाकी बच्चे स्कूल में नहीं बैठेंगे। कम से कम बच्चों में तो भेदभाव नहीं रखो। लेकिन फादर जी,
यह स्कूल जाता है तो फिर खाएगा क्या? मालिक के यहाँ ढोर चराएगा तो एक वक्त का खाना मिल जाएगा। हम स्कूल आने वाले बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। यहां के लोग मिलकर करेंगे तो सब बच्चों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सब बच्चे पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और साथ भोजन करेंगे। ज्ञान ही हमें नई दिशा की ओर ले जाएगा। ओ ज्ञान के अक्षर से हे लोगों, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। राह में जब अंधियारा छाता है, नव प्रकाश हम ढूंढते हैं। अक्षर ज्ञान मानो न पूरा ज्ञान की पहली सीढ़ी कहाई। ओ दूजों में ईश्वर को जो दिखाए सही वो ज्ञान है भाई। जन्म से कोई ना छोटा बड़ा है, आत्म सम्मान सबको दिलाए। बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं, बंद दरवाजे हम खोलते हैं। शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया कि सभी पल्ली के साथ एक स्कूल भी हो। गरीब बच्चों को भी शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए करीब 150 वर्ष पहले ही उन्होंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बनाई। बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सन्यासिनियों का भी एक समाज बनाया। कर्मनिरत जीवन बिताते हुए भी हर पल वह ईश्वरीय भक्ति और प्रेम में लीन रहे। प्रभुमय जीवन बिताते हुए सन 1871 में वह अपने प्रेमी पिता ईश्वर में एक हो गए। उनका आदर्श था, ज्ञान हमारे अंदर प्रेम भर दे, कर्म हमारे प्रेम से प्रेरित हो, भक्ति हमारी प्रेम ही प्रेम हो। चावरा बाबा ने नई राह दिखाई है, झूमे नाचे साथ गाए, ढोल नगाड़ा बाजे रे। नई राह है, नव प्रकाश है, चमका नव तारा है। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो। जीवन में रंग लाओ, प्रेम का रंग भर दो।
भगवान तुझ में प्रेम भर दे, कर्म भी तेरा प्रेम से हो, भक्ति हो प्रेम ही प्रेम, चावरा बाबा की राह यही। जीवन में रंग लाओ प्रेम रंग भर दो, 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 जीवन में रंग लाओ प्रेम रंग भर दो। As he wished, let us too declare solidarity with his ideology and work for the betterment of our society. There is another saint who followed the same path with an unshakable faith, invincible hope, and extraordinary charity. Oh, who is that? It's Saint Teresa. मदर टेरेसा ऐसी महान आत्मा हैं जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था। उन्होंने हर गरीब, अनाथ, बीमार और असहाय में अपने प्रभु ईश्वर को ही देखा और प्रेम से उनकी सेवा की। धन्य है अपना देश भारत, जहां ऐसी पुण्यात्मा के चरण पड़े जिन्होंने ईश्वर के प्रेम और दया भाव का दर्शन हमें कराया। तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ, तुझको नमन है ओ माँ। रोगी दुखियों में प्रीतम प्रभु का दर्शन तूने है किया, आहत पीड़ित और अनाथ को तेरा प्रेमांचल है मिला। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का, तेरी करुणा और सेवा का अंत नहीं ना ही सीमा, तेरे प्रेम की गहराई का माप नहीं ना ही तुलना। तुझ में दिखते प्रेम भाव और दया भाव ईश्वर का, तुझको नमन है ओ माँ। जब वह मात्र 12 वर्ष की थी, तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वे अपना सारा जीवन भारत जाकर मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। एग्नेस, मैं समझती हूँ
कि तुमने सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। हाँ माँ, 8 साल पहले ही मैंने आपसे कहा था सिस्टर बनकर भारत जाकर बंगाल में काम करने के बारे में। तब मैं छोटी भी थी। अब 8 साल सोचने और प्रार्थना करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है। भैया ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि वह राजा की फौज में बड़ा ऑफिसर है और राजा की सेवा करने में उसे गर्व है। मैंने उससे लिखा कि तुम्हें एक छोटे से राज्य के राजा की सेवा करने में इतना गर्व है, तो उससे ज्यादा मैं गर्व कर रही हूँ कि मैं पूरे विश्व के राजाधिराज प्रभु ईश्वर की सेवा करने जा रही हूँ। तुम बहुत खूब बोलती हो बच्ची, लेकिन हमेशा याद रखना, भलाई करते समय गुमसुम रहना, जैसे महासमुद्र में एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। ये तो मैंने बचपन से ही आपसे सीखा है माँ। गरीबों की सेवा करना, उन्हें सांत्वना देना, भूखों को खिलाना, ये सब आपसे ही मैंने सीखा है। आप कितना देती हैं, उससे ज्यादा कितना प्यार से देती हैं माँ। वही मेरी जिंदगी का आदर्श रहेगा। तुम्हारा जाना, वह भी इतने दूर दूसरे देश जाना, मुझे दुख देता है और पता नहीं तुमसे कब मिल सकूंगी। एक बात याद रखो, जिस प्रभु के हाथ थामकर तुम निकल रही हो, सिर्फ उसके लिए जियो और उसमें हमेशा विश्वस्त रहना। हाँ माँ, मेरा काम सफल हो या नहीं, पर मैं विश्वस्त सदा रहूंगी। मेरी बच्ची, ईश्वर तुम्हें आशीष दे और सदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। 10 सितंबर 1946 की एक रेल यात्रा सिस्टर टेरेसा के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। वह रिट्रीट के लिए दार्जिलिंग जा रही थी। यात्रा के दौरान और रिट्रीट के समय उन्हें लगा प्रभु यीशु उन्हें स्पष्ट रूप से निमंत्रण दे रहे हैं कि वे गरीबों के बीच में रहकर गरीबों, बीमारों, उपेक्षितों और अनाथ बच्चों के लिए प्रभु प्रेम की ज्वाला बने। धीरे धीरे सिस्टर टेरेसा ने सड़क में उपेक्षित शिशुओं को भी लेकर पालना शुरू किया। बच्चों के भोजन और रोगियों की दवाइयों की व्यवस्था वह भीख मांगकर करती थी। नमस्ते जी। मैं अपने बच्चों के खाने के लिए मदद मांगने आई हूँ। देखो देखो, कितने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल थी, अब भीख मांगने की नौबत आ गई। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मदद मांग रही हूँ। किसने कहा बच्चों को बटोरने के लिए? मैंने कहा क्या? जिन्हें उनके माँ बाप ने ही छोड़ दिया, उन्हें लेने की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? सभी लूले, लंगड़े, बदमाश बच्चों को इकट्ठा किया है और आई है मदद मांगने। मदर जी, छोड़ दो उस कंजूस को, हम जितना हो सके आपको दे देते हैं। रुको रुको, मैं भी दे देता हूँ। बड़ा आया मदद करने वाला। थू! क्या थूक दिया उसने? हे भगवान, ये क्या किया इसने? ये आपने मेरे लिए दिया, आप मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए।
मदर जी, आप देवी हैं, देवी, दया और प्रेम की देवी। इतना नहीं चाहिए, आज के खाने के लिए इतना काफी है। मदर जी, मुझे माफ करना। मदर जी, देखो, एक औरत इधर कीचड़ में पड़ी है। हे प्रभु, ओ माय गॉड, इसके चेहरे का एक भाग सड़ चुका है। देखो, अभी भी जिंदा है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। सिस्टर, जल्दी कीजिए, बुलाइए किसी को, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। भाई साहब, बहन जी, प्लीज जरा मदद कीजिए। इसे अस्पताल ले जाना है। इतनी बदबू है, पास खड़े भी नहीं हो सकते। छी 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 छी। भाई साहब, आप जरा पकड़िए ना। इतनी बदबू और कीड़े, पता नहीं कौन सी जात की है। मैं नहीं हाथ लगाऊंगा इसे। भाई साहब, जरा मदद कीजिए, इसे अस्पताल ले जाना है। इसे इसे इतने कीचड़ में पड़ी है, शरीर भी सड़ रहा है। क्या करेंगे, अस्पताल में भी इसे नहीं लेंगे। आज या कल मर ही जाएगी। मरने दो सिस्टर। अपनी एक बहन को बेसहारा सड़क पर अकेले ऐसे मरने दे? नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। मेरा ठेला खाली है, चाहे तो उसमें डालकर ले जाइए। हे प्रभु, कितने लोग बेसहारा सड़क किनारे दर्द में अकेले होकर मर रहे हैं। मैं उन्हें तेरा स्नेह और दया दिखाना चाहती हूँ। मदर जी, बच्चों और बीमारों के लिए खाने की व्यवस्था करना है। हमारे पास खाने का सब सामान खत्म हो गया है। दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और पैसा भी नहीं बचा है। और शिशु भवन में बच्चे बढ़ गए हैं। बीमारों के लिए अलग से जगह होना चाहिए। हम प्रभु पर भरोसा रखें। उन्हें हमारे काम पसंद है तो व्यवस्था भी वही करेंगे। हे प्रभु, तू ही मुझे रोशनी दे। तू ही प्रभु मुझे राह दिखा। जहां भी तुम मुझे ले चलोगे, अंतिम पल तक मैं संग चलूंगी। राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखाए रोशनी। राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखाए रोशनी। हाथ मेरा थाम दे, मुश्किलों को तोड़ दे। बहके कदमों को मेरे तेरी दिशा में मोड़ दे। राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा है रोशनी। राह दिखा दे, राह दिखा दे, राह दिखा है रोशनी। हाथ मेरा थाम ले, मुश्किलों को तोड़ दे। बहके कदमों को मेरे तेरी दिशा में मोड़ दे। राह दिखा दे। मदर जी, कोई दरवाजे के पास 2 बोरी चावल और 1 टोकरी सब्जी रख गया है। क्या कोई नहीं था वहाँ? कोई नहीं था, कोई पर्ची भी नहीं छोड़ी है। दान देकर वो गुमनाम रहना चाहता है। धन्य है वो। कमिश्नर साहब ने बुलाया है। वे मरने वाले और बीमारों के लिए एक जगह देना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे।
वो हमारे साथ है। आपसे मिलने जो पत्रकार आने वाले थे वही हैं। नमस्ते मदर। नमस्ते जी, नमस्ते। इसके गांव में इतने कीड़े पड़े हैं और इतनी बदबू, आप कैसे ये काम करती हैं? कोई 10,000 रुपए भी मुझे दे तो भी मैं ये काम नहीं करूंगा। 10,000 क्या, कोई 1,00,000 रुपए दे तो भी मैं ये काम नहीं करूंगी। पर आप तो कर रही हैं। रुपए के लिए कहाँ, मैं इन लोगों में अपने प्रभु ईश्वर का ही चेहरा देखती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ। सिस्टर, आप इन्हें संभालिए। आपको यहाँ खड़े रहने में तकलीफ हो रही है। चलिए हम बाहर चलकर बात करते हैं। मदर, आप यहाँ अच्छा काम कर रही हैं। लोग आपको मानते हैं। आप जो बोलेंगे लोग सुनेंगे। अब यह मौका है गरीबी हटाने, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपको एक बड़ी क्रांति लानी चाहिए। क्रांति ही तो लाने की कोशिश कर रही हूँ, एक प्रेम क्रांति। लेकिन इससे आप बहुत कम लोगों की ही सेवा कर सकती हैं। सही है, हमारी सेवा सागर में एक बूंद की तरह है, लेकिन हम ये नहीं करते तो सागर में एक बूंद की कमी रह जाती। लेकिन आपका बहुमूल्य समय आप इन लोगों के लिए व्यर्थ ही गवा रही हैं। वैसे तो ये सब ऐसे ही मरने वाले हैं। आपके घर में बगीचा है ना? बहुत ही सुंदर। आप उन फूल पौधों की देखभाल करते हैं? हाँ, मेरी पत्नी को भी फूलों में दिलचस्पी है। हम दोनों फूल पौधों की अच्छी देखभाल करते हैं। 2 दिन में मुरझा जाने वाले फूलों से क्या एक इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता? मदर, कल हमने जिस स्त्री को सड़क से उठाकर लाए थे ना, वो जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है, आपसे कुछ बोलना चाहती है। मैं जरा उनको देखकर आती हूँ। आखिर प्यार और ममता की जीत हुई और वह हमेशा हमारे लिए मां रहेंगी। मदर टेरेसा को अपने सेवा कार्य के लिए 124 अवार्ड्स मिले। 5 सितंबर 1997 की रात्रि 9:30 बजे करुणामयी मदर सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गई। आज मदर टेरेसा तो हमारे बीच नहीं है। जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की है, उनके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और आज भी पूरे विश्व में ऐसे ही महान लोगों की आवश्यकता है जो मानवता को सबसे बड़ा धर्म समझे। Oh
कुदरत की फितरत है फूलों का कांटों पे खिलना, सीखा है हमने तुझसे ही प्यार की राह चलना। कुदरत की फितरत है फूलों का कांटों पे खिलना, हो संदेशा ये तेरा दुनिया को देते रहेंगे। चलेंगे 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 चलेंगे। प्रेम दया मात्र शब्द नहीं है, गूंज अनंत है इनकी। तेरी राह पे चल के माँ रोशन है जिंदगी सबकी। प्रेम दया मात्र शब्द नहीं है, गूंज अनंत है इनकी। तेरी राह पे चल के माँ रोशन है जिंदगी सबकी। हो संदेशा ये तेरा दुनिया को देते रहेंगे। चलेंगे 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 Being a woman, she took up the challenges to transform the lives of people and dedicated her life to help the poorest of the poor, the needy, and the sick. So, kids, we should strive to keep these qualities alive in our hearts. Daddy, how Saint Chavra and Saint Teresa got inspired? They got inspired from the life of Jesus, who came to earth to give his life to the mankind. Do you know, Sarah? To do the will of Heavenly Father, Jesus came down from the heaven to save the sinners, to bring light to a dark world, to bring peace on earth, to destroy the devils and their works. He performed miracles and wonders. Jesus used to preach people through parables. Mummy, what are these parables? Parables are authentic words of Jesus. I like the parable, Go and Do Likewise, which is taught through the story of Good Samaritan. The value of the parable, Go and Do Likewise, is very relevant in present day's social scenario, where people don't have time to one's own kith and kins. The parable teaches us that we are called to help others without expecting any rewards. क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा पानी पे चलेगा एक दिन? मरियम, क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा होगा इस जग का उद्धार? क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा देगा तुझे जीवन नया? क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा देगा तुझे
जिसे है तूने जन्म दिया, वो देगा तुझे जन्म नया। जिसे है तूने जन्म दिया, वो देगा तुझे जन्म नया। मरियम क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा देगा अंधों को रोशनी? मरियम क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा आंधियों को डांटेगा? क्या तू ये जानती है दूतों की स्तुति है वो? क्या तू ये जानती है दूतों की स्तुति है वो? जिस चेहरे को है तूने चुमा, वो चेहरा है खुदा का। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे फिर से जी उठेंगे, लंगड़े दौड़ेंगे, गूंगे बोलेंगे, महिमा करेंगे वो मेरे की। मरियम क्या तू ये जानती है कि तेरा बेटा सृष्टिकर्ता प्रभु है? रेगिस्तान की इस थका देने वाली इस बर्फीली तूफान भरी रात में बस आगे ही आगे बढ़ते हुए ये व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु यीशु हैं। हमारे ही पापों से हमें मुक्त करने, हमें क्षमा करने वे खुद मनुष्य रूप में ना सिर्फ जन्म लिए, बल्कि अनेकों तूफानों, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी हो या उतनी ही भयानक रेगिस्तान की सर्द रातें, वो निरंतर चलते रहे, शहर शहर, गांव गांव और क्या देश देश। ऐसे ही एक बार उनका पड़ाव एक गांव था, जहां उनके पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बेथलेहम के गौशाले से आया जगत का पालनहारा। बेथलेहम के गौशाले से आया जगत का पालनहारा। स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। ला 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 ला। वो देखिए शास्त्री जी, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा ये व्यक्ति। अरे हाँ महाराज, ये ईसा खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन कहते हैं कई लोगों की बीमारियों को पलक झपकते ही ठीक कर दिया इन्होंने। देखो देखो अभी इसके ज्ञान की कैसे परीक्षा लेता हूँ। मतलब कैसे महाराज? देखते जाओ महाराज, देखते जाओ।
आइए आइए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है गुरुवर। मैं बहुत परेशान हूं प्रभु। मैं अनंत जीवन की प्राप्ति करना चाहता हूं। कृपा कर मुझे रास्ता बताए प्रभु। ये तो बहुत ही साधारण प्रक्रिया है मित्र। इसका विधान तो तुम्हारी संहिताओं में ही लिखा है। और क्या लिखा है, क्या आप ही मुझे बताएंगे? हाँ गुरुवर, क्यों नहीं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। बिल्कुल सही। आपको तो सब पता है। बस यही करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। ऐसे कैसे गुरुवर? प्रभु की भक्ति करना, प्रभु को प्यार करना तक तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी को प्यार करना? कौन है मेरा पड़ोसी? और भला पड़ोसी को प्यार करने से कैसे अनंत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, हैं? बताइए। हाँ, अरे बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, अरे बताइए भाई। बताइए प्रभु, बताइए, जवाब दीजिए। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। था एक मनुष्य, यरूशलेम का था वो वासी। निकला एक रोज अपने जानवर पर हीरे जवाहरात लादे यरीहो की ओर। चलते चलते वो गुजरा एक सूने रेगिस्तान से। चलते चलते एक नजर दौड़ाई जो ऊपर, देखा टीले पर एक साया। समझ गया वो मनुष्य बेचारा कि घिरा अब डकैतों से। पर समझ ना आए कि अब जाए किस ओर। घेर डकैतों ने उसको लूटा उसका सब धन। इतने पर भी ना रुके वे, उसे मार लहू लुहान कर अधमरा दिया छोड़। रेगिस्तान में वो नितांत अकेला। न तन पर वस्त्र रहे, न बाकी बची जान। बंद होती निगाहों से वो देख रहा था रेगिस्तान वीरान। किंतु तभी वहां से गुजरा एक राही जो था एक याजक। बड़ा संयोग था ये, और लगा उसे कि मदद मिल जाएगी अब कुछ। हाँ, लेकिन ये क्या उसे देखे बिना ही वो बढ़ गया आगे। वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था कंठ से कि मांग सके एक बूंद पानी भी। तभी एक और व्यक्ति आया उस रास्ते से, और अब की बार जो था वो था एक लेवी। लेकिन ये क्या वो भी बढ़ गया आगे, ऐसे कुछ दिखा ही ना हो जैसे। हार चुका था वो भीतर से। बस जाने को थे प्राण कि तभी आया एक समारी सामने, जिसने देखा उसकी ओर। देख हालत उसकी, मन दया से भर आया। घावों पर लगाकर पट्टी उसने कुछ तेल लगाया, दिया 2 घूंट पानी उसे, और उसकी की खूब सेवा। फिर बैठा उसको अपने जानवर पर, वो ले गया सराय एक। ये लो दोस्त, ये 2 दिनारी हैं। इस व्यक्ति का अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और ऊपर से
जो खर्चा आए वो तुम मुझे बताना, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा पूरा हिसाब पूरा करूंगा। मगर डरो नहीं, मैं सच में वापस आऊंगा। मगर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? भरोसा रखो, मैं सच में वापस आऊंगा। जी बेहतर, आप चिंता ना करें, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तो अब तुम बताओ कि डाकुओं के हाथों में पड़े उस व्यक्ति का पड़ोसी उन तीनों में से कौन था? बड़ी सीधी सी बात है, वही जिसने उस पर दया की। हाँ, बिल्कुल सही। जाओ, अब तुम भी वैसा ही करो। मतलब कैसे, क्या? हाँ, तुमने ठीक सुना। जाओ, तुम भी वैसा ही करो। जी महाराज। इतनी सी बात उन अज्ञानियों को समझ न आई। सब पर दया ही जीवन की सच्चाई। करोगे दया सब पर, जो करोगे सबकी भलाई। अनंत जीवन को पाने की कुंजी इसी में है समाई। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे, सब उसने ही है बनाए। आओ मिलके महिमा गाए। घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते, चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा। हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। What an amazing teaching of Jesus is portrayed here. I too get inspired and love to follow the word of God. Go and do likewise. The whole evening you spent to know about these great personalities. Now I think you don't have any confusion. Yes, we learned how to go and do likewise. Yes,
We learned how to go and do likewise. Hope John and Sarah might have gained impeccable knowledge to accomplish the project. Go and do likewise. Evening twilight beams with the grace of great personalities. Dear friends, let's join our hands together for the betterment of society and welfare of mankind by gaining all inspiration from these blessed people's life. Let's pledge to go and do likewise. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. It is the memory of a heart that will recognize the good done. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers, and echoes are in the most depths of our hearts. For the grains of gratitude, our friends are here. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Taken from Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. We raise our hearts to our Lord Almighty for making today's inaugural function a resounding success. On this auspicious day, it's our privilege to propose the vote of thanks on behalf of our management, staff, and students of Carmel Convent High School. We would like to express our heartfelt gratitude to our President, His Excellency, Right Reverend Bishop Mar Thomas Elevenal, for blessing our program with love and grace. Your Excellency, truly your words were very inspiring and is indeed very motivating. We extend our gratitude to our MLA, Shri Kisan Kathore, for discovering time for us from his busy schedule. Sir, we thank you for your continued support. Thank you, sir, for your inspirational words. We are indebted to have our most reverend Mother Provincial, Sister Philo, amidst us. Mother, we thank you for your renowned presence. Mother, we thank you for your encouraging and enriching words. We acknowledge our gratitude to our corporator, Mrs. Pramila Narhavi Patil. Our extended gratitude goes to our young parish priest of Badlapur, Father Aloysius. We owe our thanks to Reverend Father Francis Elvatingal. Our gratitude to our Vicar Provincial, Sister Merita, for her gracious presence. We owe our gratitude to Sister Josie, Provincial Councillor for Social Service. We record our gratitude to our former Provincial, Mother Lily Grace, for her valuable support. It's our immense pleasure in extending our sincere thanks to our former Principal, Reverend Sister Merslin, for joining us today and for being our light and guide throughout these years. Wheels had started rolling months back. We are thankful to our Reverend Mother Suchita for her selfless help and a timely guidance to each and every one. Strong leadership is the foundation of our school. Our sincere and heartfelt gratitude to our Reverend Principal Sister Smita for her timely support and help. She has been a strong pillar for all of us throughout these days. Sister, thank you very much for being very calm and patient with each one of us. We are obliged to all the PTA members, especially our PTA Vice President, Mr. Pradeep Agrawal. Our sincere thanks to all our principals, sisters and fathers for joining us for gracing this occasion with your valuable presence. Our extended gratitude to all our performers for making this event so colorful and memorable with your vibrant, energetic, enthusiastic and synchronal performance. Our gratitude to all the workers who have worked tediously and selflessly for our new school building under the able leadership of contractor Mr. Johnson and architect Mr. Sanjay Jadhav. We congratulate all the students and ex-students for being in order and discipline throughout the program. We are grateful to all the teaching and non-teaching staff for their valuable contribution. We owe our gratitude to all our parents, audience, well-wishers, benefactors for their timely help and support. Our sincere thanks to all who work backstage for lighting, pandal, stage and sound system.
Our extended gratitude to each and every one associated for making this inaugural function a great success. We would like to conclude with a beautiful quote. Gratitude is an appreciation for every moment in your life. It's a beautiful feeling of abundance. With this, we may Thank you.